Question number 9. Get a book. Get your book and write side by side. This is x plus 2 whole square. X square plus 6x plus 4. 3x plus 2 whole square is equal to 3x square plus 6x plus 4. तो आपका बच्चे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड होगी. This is 3x plus 2. This is just like an algebraic expression कि आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि आपका आंसर जो है वो गिवन आंसर के साथ मैच करना है. ओपन करें ब्रैकेट plus b whole square. This is a square plus b square या फिर a square plus 2ab plus b square. So you will be having 9x square 12x plus 4. It is not equal to 3x square plus 6x plus 4. We solved it, but the thing that we are getting that are not equal. Question number 10. A part. He says if we substitute x is equal to minus 3 in x square plus 5x plus 4, you will get the answer to be 15. This is the question that if you substitute x is equal to minus 3 in the given question, you will getting the answer to be 15. Let us replace x is equal to minus 3 in this expression. Put x is equal to minus 3. We will be having x square 5x plus 4. Replacing x by minus 3. This becomes 9 minus 15 plus 4. And this is equal to minus 2. हमारा आंसर -2 आ रहा है. पुट करके आंसर -2 आ रहा है. इसके अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए 15. नॉट इक्वल टू दिस इज द एरर. B part you will do yourself. Let us start with C part. X square plus 5x gives the answer -24. After putting x to -3 put करके -24 मिलेगा. This is the question. Let us put x is equal to -3 in this question. This is not equal to -24. उसके अकॉर्डिंगली आंसर -24 है. But the correct answer is -6. अब ये भी हो सकता है कि आपने इसको सॉल्व किया करेक्ट आंसर को और आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर वो -8 बन रहा है, यानी कि आपने कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी, तो वो भी तो -24 के इक्वल नहीं होगा. बट फिर भी आपने इसको चेक करके देखना है अपने अकॉर्डिंगली, पर अच्छे से अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 11. y minus 3 whole square is equal to y square minus 9. y minus 3 whole square is equal to
y square minus 9. So we consider y minus 3 whole square. This is the formula of a minus b whole square. So you will be having a square minus 2ab plus b square. So you are having y square minus 6y plus 9. जबकि दिया क्या हुआ है y square minus 9 not equal to y square minus 9. This is not equal to y square minus 9. ठीक हो गया, चलिए let us do question number 12. 12 अपने आप करोगे. I am doing question number 13. Quite all of you. Question number 30. Saksha, wear your mask and write side by side. No talking at all. Question number 13. Two a plus 3b into a minus b, 2a square minus 3b square. No. If you consider the left hand side, this is like this. Rhythm is saying that here you can apply a minus b, a plus b, a minus b. But बच्चे a plus b, a minus b will be applied only when the two terms in the brackets will be the same. यहाँ पे नो डाउट प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, पर जो टर्म्स जो है ब्रैकेट्स की वो सेम नहीं है ना. तो इसका मतलब हम फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, तो हम ब्रैकेट्स को वैसे खोलेंगे जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में ब्रैकेट्स को खोलना सीखा था. लेट अस सी हाउ. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज. फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर साइन के साथ, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज. आई होप दैट यू हैव रिमेंबर्ड इट. You remember it? चलिए, let us solve it. 2a into a, this will become 2a square. Plus minus minus 2a into b, 2ab. Plus 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 3b into a, 3ab. Plus minus minus 3b square. So this will be equal to 2a square. इसको मैच करो. Plus minus minus 3ab minus 2ab, ab plus का साइन. टू ए स्क्वायर बेचे कीप क्वाइट. This is not equal to 2a square minus 3b square. ये 2a square minus 3b square के इक्वल नहीं है. Fourteenth question you will do yourself. I am going to start with question number 15. A minus 4, a minus 2 is equal to a square minus 8. Taking up left hand side in consideration, you are having a minus 4 into a minus 2. And you know, no formula is applied here.
कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा, तो फिर हम कैसे ब्रैकेट्स खोलेंगे? द वे वी यूज टू ओपन द ब्रैकेट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. That means first bracket का first number, second bracket as it is, first bracket का second number sign के साथ, and second bracket as it is. First bracket का first number, second bracket as it is, first bracket का second number sign के साथ, and then second bracket as it is. Now let us open the bracket. A into A, this is A square minus 2A. 4 into A minus 4A minus minus plus 4 2s are 8. So this will be A square. Matching up the sign, bete Saksham. Minus minus plus 4A 2A 6A. Bigger is 4, sign is of minus. Not equal to A square minus 8. Question number 16. Three x square over 3x square, this is equal to 0. Left hand side lane. 3x square get cancelled. Answer should be 1. 0. देख लो, यही गलती पेपर में करोगे कि दिस गेट कैंसिल. 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 0 है ना. 2 over 2 कट होके आंसर 0 आता है, 1 आता है. So 3x square divided by 3x square, answer will be 1. Question number 17. 3x square plus 1 upon 3x square is equal to 1 plus 1. Let us consider this. क्या है? सही है ये? आप कह रहे हो प्रगति सही है? देखो ध्यान से, ये जो 3x स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स के नीचे लिखो. अगर आपके पास 5 plus 6 over 2 हो, you can write 5 over 2 plus 6 over 2, लिख सकते हो ऐसे. इसी तरह से this will be written under both of the term. 1 के नीचे भी लिख दिया, 3x स्क्वायर के नीचे भी. ये कट हो गया, कितना बना? 1, which is not equal to 2. This comes out to be 1, which is not equal to 2. Anyone having syllabus? दिखाना मुझे. Last question. हो गया 18th question? सोमिल हो गया क्वेश्चन नंबर 18? देखो कैसे करेंगे इसको. Look at question number 18. 3x over 3x plus 2. This is 1 by 2. Consider करो इसको. 3x upon 3x plus 2 को consider करो. 3x upon 3x plus 2 को you consider. अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि नीचे टर्म्स ज्यादा है, ऊपर टर्म्स कम है. इसको हम वैसे तो इसको सॉल्व करना मतलब लाइक कि हम नहीं इसको कर सकते, पर मैक्सिमम अगर इसको हम सॉल्व करना भी चाहे बेटे क्वाइट. सो ये जो 3x है ये इसके नीचे आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ऊपर से नहीं पता चला. ये 3x इसके नीचे आ गया. अब ये दोनों के नीचे लिख दिया, इसके नीचे भी
और इसके नीचे भी। ये क्या बना देखो, 1/1 + 2/3x। बस इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू 1/2। हम इसको डिवाइड में जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते थे वो इतना ही है। इसको नीचे ले जाके कटिंग कर दो, इससे ज्यादा ऐसे नहीं करते थे, ऐसे कभी कटिंग हुई है? सक्षम, आप बाहर चलो क्लास से, उठ जाओ। ऐसे कभी कटिंग की है आपने? बता दो, कभी ऐसे कटिंग की? आप क्यों भूल जाते हो कि जो रूल्स नंबर्स पे होते हैं वही रूल्स एक्सप्रेशंस पे भी हैं। जैसे नंबर्स ऐसे कट नहीं हो सकते, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे 3x 3x कट नहीं हो सकते। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 19 कर लो नोट। Question number 19. 3/4x plus 3, 1/4x. 3/4x plus 3, 1/4x. अब मैं बताती हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना आपके अकॉर्डिंगली, तो इसमें कोई एरर ही नहीं है। आप कहते हो कि 3 3 गेट कैंसिल, तो 1/4x। इसी एरर के अकॉर्डिंगली इसने ये क्वेश्चन डिजाइन किया कि बच्चे ये गलती करते हैं। तो बच्चों को बता दो कि ऐसे कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। कभी भी हम इस तरह से, अगर हमारे पास हो, हम कभी भी 5 3 15 कैंसिल नहीं कर सकते। हमें टीचर्स बताते हैं कि पहले इनको ऐड करो, सॉल्व करो, फिर कटिंग होगी। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी यू कांट डू द कटिंग लाइक दिस। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 3 को नीचे लेके आ सकते हो। यहाँ पे 1 रह गया और ये 3 इसके नीचे आ गया। अब इस 3 को दोनों के नीचे लिख दो। फोर एक्स अपॉन 3 प्लस 3/3, तो ये बना 1/4x/3 प्लस 1, and which is not equal to 1/4x. Saksham, I am giving you the last warning. उठ जाओ यहाँ से बेटे, आप उसकी जगह पे चले जाओ, इंटरचेंज कर लो। कम टू द फर्स्ट बेंच। Yes, Jayant, what do you want to ask, Jayant? मैम मुझे ऊपर से नीचे नंबर लेके आने वाला स्टेप नहीं समझ आया। बेटे अगर आपके पास जैसे 2/5 है, ठीक है, तो ये जो 2 होता है इसको हम 5 के नीचे लेके जा सकते हैं ऐसे, 1 5/2, क्योंकि इसको दोबारा ऊपर लेके जाओगे ये 2/5 ही बन जाएगा। ये 3/4x + 3 है, तो आप इस 3 को नीचे लेके आ सकते हो, राइट? सो आई एम राइटिंग इट टू बी जो आंसर, इसी को ऐसे रहने दे कि नॉट इक्वल टू दिस। सीधा कुछ तो बताना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से नीचे 4x को अकेला कर रहा है। हम यस, ये 1/4x कभी हो ही नहीं सकता। इट कैन नेवर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये सीधा ही लिख दो, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/4x, तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ आर डिफरेंट।
फ्रैक्शन की हुई है एरर की जगह, ये 1/4x होना चाहिए था। पूछा रिदम ने, आप अगर वहां से कोई पूछे कि इसकी एरर की करेक्शन क्या है, यू विल से दिस विल शुड बी इक्वल टू इटसेल्फ। जैसे हाँ, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने सॉल्व करके करेक्शन बताई थी कि ये एरर है, ये करेक्शन है, यहाँ पे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, आंसर यही रहेगा, ये इसी के इक्वल होना चाहिए, ये 1/4x के इक्वल है। हाँ ये लिखिए ऑलरेडी, मतलब इसको हम किसी नंबर के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर यही रहेगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। फोर एक्स प्लस 5 क्वाइट, अब इसको हम कर सकते हैं, ये 4x दोनों के नीचे लिख दो, ये बन गया 1 plus 5/4x, this becomes 1 plus 5/4x and this is not equal to 5। जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम है इसके जैसा, look at example number 15, example number 15, page number 226। divide this by this। अब ज्यादा बड़ी पावर देख के घबराना नहीं है, आपने इसको कॉमन के अकॉर्डिंगली जो है टैकल करना है। कैसे, देखो जरा, ये जो हमारा अपर एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें से अगर आप x की कोई डिग्री, कोई पावर कॉमन ले सकते हो तो उसको ले लो। पूरे एक्सप्रेशन में से x² कॉमन, अंदर बचा x² माइनस 5x माइनस 24। पूरे एक्सप्रेशन में छोटी डिग्री हमेशा कॉमन आती है, तो डिग्री स्मॉलेस्ट डिग्री, तीनों में x है तो कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन किसको लेंगे, जो डिग्री छोटी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री स्क्वायर है तो वी आर टेकिंग x² एज कॉमन। पहले कटिंग कर दो, बाकी काम बाद में। दिस इज 11 4 जा, दिस इज x। पहले बार वाले टर्म्स को मैनेज कर दिया करो, नहीं तो फिर बाद में एंड में आपको इकट्ठी कटिंग करनी मुश्किल लगती है। आई नोटिस यू कैंसिल द टर्म विच आर आउटसाइड, ठीक है। हाँ, अब जो ऊपर है हमारे पास एक्सप्रेशन, इन दैट यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म्स। देखो जरा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 24, 1 4 जा 124, 1 into 24 24। तो मैं अगर 1 से शुरू करूँ, 1 और 24 को मल्टीप्लाई करके तो 24 तो आ जाएगा, बट 1 एंड 24 की हेल्प से आप 5 नहीं बना सकते। सो दिस चॉइस इज रॉन्ग, ये चॉइस हमारी गलत होगी। 2 पे आए, 2 12 से 24 होता है, बट 2 and 12 से 5 नहीं बन सकता। 3 पे आ जाओ, 3 8 से 24 एंड मोर ओवर 3 and 8 की हेल्प से 5 बन सकता है। अगर 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट पेयर इन विच वी शुड स्प्लिट 5x। कैसे लिखेंगे, x², एक नंबर हुआ 3x, एक हुआ 8x माइनस 24। अब इसमें से आंसर का साइन हमेशा बड़े का साइन हमेशा आंसर वाला, आंसर का साइन माइनस है तो बड़े का साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लगाती हूँ तो 8 and 3 माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएंगे, 11। तो मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा।
उसका साइन आंसर के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लिसन, नेक्स्ट स्टेप देखो बेटे, क्वाइट, यहां से x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 3, एग्री, दोनों में से x कॉमन आया, इनसाइड यूर हैविंग x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लुक एट द बोर्ड, 8 एंड 24, 8 के टेबल में दोनों आते हैं, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों बैठे हैं 8, पहले मैं 8 कॉमन ले लेती हूँ, बाद में साइन देखते हैं। x का साइन माइनस, यहाँ पे x का साइन प्लस, कांस्टेंट का साइन माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट का साइन प्लस, यानी दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, और अगर दोनों के साइन चेंज करने बार क्या कॉमन लोगे, माइनस, माइनस 8 कॉमन आ गया, अंदर बचा प्लस x, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। 24 8 की टेबल में कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। So you are having 4x into x plus 3 is the answer. आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग में देख के आपने डर जाना है, आपने कहना है ये पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं आता। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे उसके बाद आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इज इट ओके? लिटिल डिफिकल्ट बट यू कैन डू बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर एज कॉमन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 16। चलो we'll continue tomorrow.